لیکن آج ہم سیکھیں گے جو آخر تک کیا کرے گا جی؟ برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ خدا ان کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ ہم سب پر کیا ہو جی؟ مل کے بولے، ہم سب پر۔ یہاں پر جو آج ہم سیکھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کو تفصیل کے ساتھ سیکھیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پہلے سنڈے کون سا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے سنڈے کون سی تھی بات؟ محبت کیا بڑھ جائے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور اس سے پہلے کون چیز تھی؟ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ لڑائی کا موجب کون ہے، کہاں سے یہ لڑائی چلتی ہے اور کہاں سے چلی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ لڑائی کا موجب بنا، اور وہ موجب شیطان ہے، ابلیس ہے، جو جس نے آسمان سے یہ کام شروع کیا اور پھر نیچے باغ عدن میں آیا اور وہاں پر خدا کے جو ہے وہ درمیان اور کس کے درمیان؟ انسان کے درمیان کیا کر دی گئی جی؟ کیا کر دی گئی؟ جدائی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ باغ عدن سے باہر نکلا اور اس نے قائن اور ہابیل میں لڑائی کروائی اور آخرکار کیا کیا جی؟ قتل کر دیا۔ آخرکار کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وجہ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ جو ہے کیا ہوگا؟ اس کا موجب قتل و غارت، عداوت، ٹھوکر کا باعث، ایک دوسرے کو پکڑوانا اور آخرکار کلیسیا کے درمیان میں پھوٹ ڈال دینا ہے، کلیسیا کے دلوں میں پھوٹ ڈال دینا ہے کہ کوئی شخص ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ بیٹھے، کوئی شخص آپس میں پیار محبت سے نہ بیٹھے، کوئی شخص، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم اس دن کو نزدیک آتے دیکھو تو جمع ہونے سے کیا نہ کرو۔ اب مقدس پولس رسول کہتے ہیں تمہارے جمع ہونے سے کچھ فائدہ، بلکہ جمع ہونا لڑائیاں ہوں گی، پولس رسول یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جب محبت ہوگی تو پھر ہی ہم ایک دوسرے کی دعوت کریں گے، پھر ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے تو یہ یاد رکھیں یہ بغض ہے، یہ شیطانی تاثیر آپ میں کام کر رہی ہے۔ جب آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں، کیا ہے جی؟ خدا محبت ہے، اور جب خدا محبت ہے تو محبت نہیں، تو آپ کے درمیان، آپ کے اندر خدا نہیں، اور آپ کے اندر خدا نہیں یا آپ کے درمیان خدا نہیں تو پھر دوجی ہستی تو اڑے گی۔ کیونکہ جب ابلیسی تاثیروں کو نکالا جاتا ہے تو وہ کیا ڈھونڈ، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب ابلیسی تاثیر نکلتی ہے تو ویرانوں کو ڈھونڈتی ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہے جی؟ ویرانوں کو ڈھونڈتی ہے، اور ویرانوں کو ڈھونڈ کر کیا کرتی ہے؟ اس میں جا کر بس جاتی ہے۔ لیکن لکھا ہے اگر ویرانہ اس کو نہیں ملتا تو پھر وہ کہتی ہے میں واپس اسی اپنے گھر میں جاؤں گی، اور پھر ایک نہیں اپنے ساتھ اور لے کر آ جاتی ہے۔ یعنی جو شخص جس میں سے نکالی گئی، اگر وہ ویران کا ویران ہی رہتا ہے، اگر وہ شخص اس کے اندر خدا کی محبت نہیں رہتی، اگر خدا کا روح اس میں نہ رہا تو وہ ویران ہے، اگر اس میں نہ تھا تو اس نے پھر اس کو واپس آ کے ویران پایا، اس نے پھر اس کو آ کر محبت سے، خدا کے کلام سے، خدا سے خالی پایا، اور 7 بدروہیں اور لا کر اس میں رکھ۔ یہ ہم سیکھتے ہیں کہ محبت کیا ہے جی؟ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ بے دینی کے سبب سے محبت کیا ہوگی جی؟ لا قانونیت، جس میں قانون نہیں ہوتا۔ آج ہم سیکھیں گے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اب یہاں پر چند باتیں ایسی ہیں جو غور طلب ہے، جلدی سے
बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि निजात जो है हम बर्दाश्त क्या करेंगे, अगर इज़ार सानी या नुकसान बर्दाश्त करेंगे तो फिर हमें जो है वो निजात मिलेगी। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर जिस निजात का जिक्र है वो निजात रूहों का जिक्र नहीं है जो आखिर में मिलेगी। उस निजात का इस निजात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस बात को ये ना समझे कि हम दुख सहेंगे तो हम निजात पालेंगे या हमें ये निजात छुटकारा मिल जाएगा, नहीं। ये बात याद रखें, वो निजात खुदा यीशु अल मसीह के कफारे पर ईमान लाना और उसके फजल पर ईमान लाना और उसके जी उठने की क़यामत पर ईमान लाना। हमारा ईमान क्या है कि हमारा ईमान मसीह खुदावंद किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ जी, मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। ये हमारा ईमान है। किसी दिन खुदावंद ने चाहा तो हम जो ईमान का भेद, ईमान के बारे में सीखेंगे कि हमारा ईमान क्या है। बहुत सारे लोग ये बात दरियाफ्त करना चाहते हैं कि ईमान क्या है, लेकिन हम इसको हम देखेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का और यहाँ पर टोभा में आने का मकसद जो है किसी हद तक खुदा जो है वो यहाँ तक मुझे लेकर आया है और मकसद मेरा मकाशफात की बात करना है। यहाँ पर आप लोगों को मकाशफा के बारे में बताना है, एंड टाइम्स के बारे में बताना है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि जी हमें निजात मिल जाएगी, लेकिन निजात खुदावंद यीशु मसीह के कफारे में है। और जब हम इसको मजीद देखते हैं, कफारा और ईमान की जब बात करें तो फिर दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक नामी मसीही और एक अमलन मसीही जो है। एक नामी मसीही है और एक कौन सा है, खालिस मसीही है। नामी मसीही वो है जो खुदा के नाम से मसरूफ तो किए जाते हैं, मंसूब तो हैं, उनके खानदानों में, मसीह खानदानों में पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो ना तो चर्च जाते हैं, ना वो दुआ करते हैं, ना कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, ना उनकी जिंदगी में पाकरू काम करता है, ना वो खुदा की कुर्बत में रहते हैं। वो लोग नामी मसीही हैं। गले में क्रॉस डाल लेना ही बड़ी बात नहीं होती, नाम के साथ मसीह लग जाना ही बड़ी बात नहीं होती। मैंने नाम के बारे में बताया था, सरनेम जो होता है वो पहले नाम का मालिक होता है। सरनेम क्या होता है, पहले नाम का। जैसे मेरा नाम जुबैर नवाब है, क्या है जी, अब नवाब जो है मैं जब भी तारुफ करवाऊंगा, मेरा तारुफ और मेरा मालिक जो है, यानी मैं मजाजन तौर पर कह रहा हूं, मजाजन मालिक मेरा कौन होगा, मैं किससे मंसूब किया जाऊंगा, मैं नवाब के नाम से मंसूब किया जाऊंगा। लेकिन इसके आखिर में भी एक क्या होता है जी, जुबैर नवाब। अब हमारा मालिक जो है वो मसीह यीशु की जात है और कोई जात नहीं। अब नामी मसीह और खालिस मसीह, खालिस मसीह में सबसे बड़ी बात कलाम मुकद्दस होता है और उसमें अमल होता है, उसमें मोहब्बत होती है, उसमें मोहब्बत ठंडी नहीं होती, उसमें क्या होती है, मोहब्बत होती है। लेकिन बात याद रखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोग जी तुझे तो खुदा दे खाना हो तो तुझे इतना क्यों बोल दे, ये बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भी तुसी ने खुदा दे की है खादम दे, तुसी उच्चा ना बोलिया करो या इतना की गल ना करे। क्या मैं खुदावन के घर की तरतीब को खराब कर दूं? खुदा को भी गुस्सा आया था, खुदा को भी कब आया था जी, कब, जब हैकल में तमाम रुपए पैसे एक्सचेंज करने वाले कबूतरों और तमाम तरह के ऐसे कारोबार और सियासती लोग वहां पर बैठे थे, तो खुदा ने वहां पर कपड़े का कोड़ा बनाकर उनको मारा
घर दुआ का घर है। क्या करेगी? तुमने इसे चोरों डाकुओं की खो बना दिया है। तो मैं खुदा का खादम होते हुए यहां पर इस चर्च में खुदावंद के कलाम में कोई रहत नहीं दे सकता। मैं अगर अपने तौर पर कहूं जी और तो कोई नहीं गलती कर रहा हूं, नहीं। जब ये मना करता है, जब खुदा मना करता है, तो मेरी भी कोई बेसात नहीं है कि मैं भी वो काम कर सकूं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को पढ़ा लेते हैं, ये बातें सुनना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बातें सुनना पसंद नहीं करते और वो क्या करते हैं, और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4:30 आयत है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिश के माफिक बहुत से उस्ताद बनाने, जिन्हां दे कन्नां नूं सच सुनने की आदत नहीं ना, जिन्हां दे कन्नां नूं खुदावंद दे कलाम सुनने की और खुदावंद दे कलाम की सच्चाइयों को सुनने की आदत नहीं है, वो क्या करते हैं, वो उन लोगों के पीछे जाना शुरू कर देते हैं जो इनको नरम नरम और मीठी मीठी बातें करना पसंद करते हैं। बाबा बुजुर्ग होवे ना तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਬੜਾ? ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ। क्या है जी? ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ठीक ਹੁੰਦਾ है, लेकिन हम सख्त गदा खाना पसंद नहीं करते। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुमको आज भी दूध पसंद है, तुम्हें सख्त गजा पसंद नहीं है। वक्त के लिहाज से तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना चाहिए था। लेकिन आज भी असी जनाब माड़ी की जुत्ती भी की हो जाए ना तो ऐसे कहते एकदम नहीं होना चाहिए, ऐ नहीं होना चाहिए। कलाम से क्यों लिखे है? ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ना खुदा उतो नहीं करना। किवें? मैंने पहले बताया कि एक पादरी साहब ने शराब पर मैसेज दिया और जब वो देकर नीचे आए तो क्या नीचे से भाई जो है तो वो शराब पीते भी थे और बेचते भी थे। तो उसने 2000 रुपये पकड़ा और पादरी साहब के हाथ में दे के कहता है, भाई साहब जिथे शराब की गल आती ना उतो बरकत थोड़ा दिया करो। लिखा है तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर कमी है, अगर तुम्हारे अंदर गुनाह है तो कलामे मुकद्दस तुम्हें चोट लगाएगा। और खुदा तुम्हें इसलिए चोट नहीं लगा रहा कि तुम ठोकर खा लो। शैतान तो चाहता है, हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आखिर में आएंगे और अदावत डालेंगे और क्या करेंगे कि एक दूसरे में ठोकर का बायस करेंगे। और लेकिन यहाँ पर है हमारे लोग जो है इस बात को समझते नहीं, वो कहते हैं जी बस जी हाँ हाँ ये गल हो ही क्यों, चलो जी उत्थे चलते हैं जिथे सानू नरम नरम गल्लां पसंद, जिथे सानू बाबियां दा की कहते दलियां मिले, साबूदाना मिले। अज भी जी साबूदाना खाना पसंद करते हैं, कभी असी वो चीज़ खाना पसंद नहीं करते। जब हम इस बात को देखते हैं तो आगे आज हम उन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे कि जो निजात के बायस, जो लोग निजात के बायस बर्दाश्त करने के खुदा के निजात के वारिस हुए, उन चीजों के वारिस हुए। अब बहुत सारे लोग उस वक्त इनकार करके ये समझेंगे कि मैं बच जाऊंगा। बहुत सारे लोग इनकार करके ये समझेंगे कि मैं बच जाऊंगा, मैं निजात पाऊंगा। और मैंने बताया था कि पहले बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं उसको पकड़वा देता हूं, मैं उसको क्या करता हूं? पकड़वा देता हूं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसको पकड़वाऊंगा और फिर बाकी खानदान के लोगों को भी पकड़वाऊंगा। लेकिन क्या होगा कि तुम मुझे और मेरे घराने को छोड़ दो। बेटा घर में बातें कर लिया करें, बातें करने के लिए हमारे घरों में बड़ा टाइम है। जब कलाम मुकद्दस की बारी आए तो कलाम मुकद्दस मेरा भी फोकस खराब ना किया करे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो ये याद रखें, बहुत सारे लोग ना इतने थले दुआ बड़ी करते हैं, खुदा तेरा खादम
खादम ना बोले, तेरा पाखरू बोले, तो जब कलाम सुन लेंगे तो बात याद रखेंगे नहीं पाओगे सही नहीं क्या। आपको याद रखें ये आप रूह कुदस के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? रूह कुदस के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सानू जगह दे के भी कहते हैं कभी पैसा तो नहीं दिता साड़ियां कड़ियां रूमा लगियां। आप किसको देते चला? किसको? तो बहुत सारे लोग इस चीज में कहते हैं नहीं जी तो पादरी नहीं देना पड़ेगा, पादरी तो हमने खुदा को जो है हमने उस लिहाज से अभी तक नहीं सोचा। तो बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि मैं इनकार करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये बात याद रखें इनकार में निजात नहीं है। इनकार में निजात जो बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा, जो करेगा बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये गल ये नहीं है कि पुठे काम करके हम उसी बर्दाश्त करना को। एक बंदे को मार पई, उन्हें पुठा काम किया ही, चोरी की थी, चोरी की थी या कोई गलत हरकत की थी तो उन्हें मार पई। तो कहना मारो मारो, शिगिर्दा को तो मार पई, मारो मारो शिगिर्दा को तो मार पई। ओ भाई उसने तो क्या किया है? खुदा के बंदे उसके शागिर्द क्या कहते हैं? पतरस फरमाते हैं यूहन्ना खुशी कर और शादमान हो, हमें मसीह यीशु की खातिर जो है वो सजा मिली। इस कामली इसी सजा मिली। खुदावंद का मुकद्दस कलाम फरमाता है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुमने शरारत करके मुक्के खाए। क्या की जी? असि शरारत करके ना मुड़ के सारी गल किते तो सुटते ने खुदा दे ले भी मैं खुदा दी जनाब को दिखा के आया। इस तरह नहीं होता, इसका अगर कोई भी नहीं है। लेकिन जो खुदावंद यीशु का इनकार करेगा तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में एक बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है मत्ती रसूल की इंजील 10वां बाब उसकी 32 से 33वीं आयत तक, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी बाप के सामने जो आसमान पर है जो उसका इनकार करूंगा। अब खुदा जब हम उसके सामने आएंगे तो खुदा यहोवा पाक खुदा की जात यीशु मसीह को मुखातब करके पूछेगी, ऐ मेरे बेटे क्या तूने इसके लिए कफारा नहीं दिया था? ऐ मेरे बेटे क्या तूने इसके लिए जान न दी? तो जब ये खुदा उसमें नजर करेगा उसके अमालों के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर, उसमें कफारे के ऊपर ईमान लायक कोई चीज ना रहेगी, तो फिर खुदा कहेगा यकीनी तौर पर मैंने दिया था लेकिन ये अब मेरा नहीं रहा, ये अब मेरा नहीं रहा, ये अब मेरा कफारा जो है उसको कबूल करने के लायक नहीं रहा। लेकिन जो कोई उसको कबूल करेगा तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, मकाशवा की किताब इस बारे में बयान करती है, 2 बाब उसकी 7वीं आयत में कहते हैं कि जो कोई गालिब आएगा उसको मैं खुदावंद के हजूर जो फिरदौस है उसमें दरख्त हयात का लगा हुआ है उसमें से मैं उसको खाने को दूंगा। हालेलुया, उसको मैं उसमें से खाने को दूंगा। और फिर लिखा है उसकी 11वीं आयत में उसके ऊपर दूसरी मौत तक का कोई भी इख्तियार नहीं होगा। 26वीं आयत में लिखा है मेरे कामों के माफिक अगर तक आखिर तक अमल करोगे तो मैं कौमों पर तुम्हारा क्या करूंगा जी? इख्तियार दे दूंगा। कौमों पर क्या दूंगा? लेकिन जो गालिब रहेगा, जेड़ा इनकार कर जाएगा, जिदे अंदर ईमान की कोई गल ना होई, जो डटे ना रहे, जो ईमान के ऊपर मजबूत ना रहे, जो डर गए और घबरा गए और घबरा कर उसका इनकार कर दिया, उसके लिए कोई चीज भी नहीं रहेगी। और लिखा है 21वीं बाब में उसकी 7वीं आयत में, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। ये उनके लिए है जो क्या आएंगे? आखिर तक बर्दाश्त करेंगे, जो इन चीजों पर क्या आ जाएंगे? गालिब आ जाएंगे।
باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. خدا کے لوگ, مسیحی لوگ جو ہیں, آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں جی؟ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اب ان باتوں کو سنیے گا. آج ہماری محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. آج بے دینی کے بڑھ جانے سے ہم خدا کے گھر کے ساتھ, خدا کے خادموں کے ساتھ, خدا کے کلام کے ساتھ, خدا کے ساتھ رفاقت کو توڑ چکے ہیں. ہم اپنے اندر خدا کے روح کو بجھا چکے ہیں. لیکن خدا کے لوگ جو پہلے مسیحی, ابتدائی مسیحی تھے, کبھی ان کی زندگیوں پر غور کیجئے گا. ان باتوں کو بڑا دل سنبھال کر سنیے گا. اب ان لوگوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے جو اعزار ثانیہ سہ کر, ان چیزوں کو برداشت کر کے خدا کے ساتھ آج شامل موجود ہیں, آسمان پر موجود ہیں. کیونکہ مسیحیت کا اور دکھ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. مسیحیت کا اور دکھ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. ان باتوں کو اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں. تاریخ گواہ ہے کہ مسیح لوگوں نے اپنے سر کٹوا لیے, اپنے آپ کو جلوایا, اپنے آپ کو آلوں میں کٹوایا, لیکن کبھی مسیح کے نام پر انکار نہیں کیا, بلکہ وہ یہی کہتے رہے, ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے, دل اس سے منور ہے, احسان یہ بھارا ہے, انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. شہنشاہ ڈیلیسیوس, ہم نے یہ نام شاید پہلی دفعہ سنا. شہنشاہ ڈیلیسیوس, نیرو کا کس نے سنا ہوا نام؟ نیرو بادشاہ. چلیے کسی دن اس کو تفصیل سے بتائیں گے. نیرو بادشاہ نے بھی بہت سارے ایسے یہودیوں کو, مسیحیوں کو قتل کیا, اور ڈیلیسیوس کے دور, شہنشاہ ڈیلیسیوس کے دور حکومت میں رومیوں میں مسیحیوں پر انتہائی ظلم و ستم کیا گیا, اور جو بھی کوئی جرم ہوتا وہ ان کے نام لگا دیا جاتا. لاکھوں کی تعداد میں مسیحیوں کو قتل کیا گیا, لاکھوں کی تعداد میں ڈیلیسیوس کے دور میں ان کے سر کو قلم کر دیا گیا, یہاں تک کہ زندہ جلا دیا گیا. اب ان میں سے چند نے دیکھیں کیا کیا, لیکن انہوں نے کبھی خدا یسوع کا انکار نہیں, کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. یہ اعزار ثانی جو ہے تقریباً 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک ہوئی, اور اس میں رومیوں نے ایک ان کی تماشگاہ ہوتی تھی, شاید آپ لوگ جانتے ہو یا کسی نے دیکھی ہو. بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں, اور میرا فخر ہے اس بات پر. اور کس کی وجہ سے؟ خداوند یسوع المسیح اور کلام مقدس کی وجہ سے, کیونکہ یہی ہے جو میری اور آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے, اور پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. میری اپنی کوئی بساط نہیں. اب ان کے جو تماش کہاں ہوتے تھے, آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اشارے قدیمہ میں, آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. ایسے گراؤنڈز, پلے گراؤنڈ ہوتے تھے. بہت ساری فلمز میں بھی یہ باتیں دکھائی گئی. ان کو کہتے تھے کلوزیمز, کلوزیمز ان کو کہا جاتا تھا. کلوزیم اس طرح کا تھا, وہ گول دائرے میں ہوتا تھا, گول گراؤنڈ کی شکل میں ہوتا تھا, لیکن ان کے جو گرد جو تھا وہ دیواریں کھڑی کی جاتی, اور ایک ہی دیوار کے ساتھ ساتھ اس دیواروں میں کیا ہوتا تھا کہ نیچے سے لے کر جو ہے وہ نشستیں چلتی, اور بیرونی دیوار تک نشستیں جو ہیں وہ چلتی جاتی تھی, اور تقریباً یہ 100 فٹ کے قریب جو ہے وہ نشستیں جو تھی وہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں موجود تھی. اور وہاں پر لوگ موجود, تماشائی موجود ہوتے اور بیٹھتے, اور سامنے صدر نشینی ہوتی تھی. صدر نشینی میں شہنشاہ اور اس کے نائب اور تمام معتبر لوگ جو تھے وہ وہاں پر بیٹھتے تھے, اور جب وہ وہاں پر بیٹھتے تھے تو وہ نیچے جو پلے ہو رہا ہوتا تھا, جو کھیل ہو رہا ہوتا تھا, اس سے محظوظ ہوتے, اس کو دیکھ کر کہتے لگاتے,
मजाक उड़ाते, हुटिंग करते, कुछ भी जो है उनके बस में होता तो वो इंजॉय करते थे, वो मजा लेकर इन चीजों को देखते थे। लेकिन मजा लेना तो बुरी बात नहीं था, लेकिन वो किस बातों से इन चीजों को लेकर हुटिंग करते, कहने लगाते, आज जरा सुनिएगा। सिकंदर नामी एक मसीही फिरके का उस्ताद था। सिकंदर नामी मसीही फिरके का एक उस्ताद था। वो उम्र रसीदा था, वो बूढ़ा था। उसको उस प्ले ग्राउंड में छोड़ दिया गया। उसको उस प्ले ग्राउंड में, तमाशगाह में क्या कर दिया गया? छोड़ा गया। अब वो बुजुर्ग अपनी धीमी रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। उसका जिस्म जो है वो ढलका हुआ है, वो बुजुर्गी के आलम में है। उसका सफेद सर जो है वो सफेद हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर बड़ी ही रौनक है। उसका चेहरा पुरतमाक तरीके से, खुशी से, रौनक से चमक रहा है। लेकिन तमाशाई जैसे ही उसको देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर कहके उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है, और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो चीज बयान करता है, और वो कहता है, रोमियो रोमियो एक बात सुन लो। रोमियो उनको मुखातिब करके, रोमन्स को मुखातिब करके कहता है, मैं मसीह हूँ, मेरे लिए मेरे खुदावंद ने मेरे लिए जान दी है, अब मैं खुशी से अपनी जान देता हूँ। आप ये बड़ी अच्छी बात और ईमान अफसोनी की बात है। अब उसको पता है कि मैं अकेला हूँ और इस हालत में हूँ और मौत मेरे सामने है। और वो मौत कैसे उसके सामने है? जैसे ही उसने ये नारा बुलंद किया तो 3 चीते उसके ऊपर छोड़ दिए गए। और जब 3 चीते उसके ऊपर छोड़ दिए गए, वो आसमान की तरफ देखता और दुआ करता है, और यकीनी तौर पर वो ये कह रहा होगा कि खामोश के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और 3 चीतों ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से खुदावंद यीशु का इनकार नहीं किया। अब जवान साल एक ग्रोह लड़कियों का, कमारी लड़कियों का एक ग्रोह को छोड़ दिया गया, ग्रोह को छोड़ दिया गया। और जब ग्रोह को छोड़ा गया तो वो मौत को सामने देखकर सहम तो गई, मौत को सामने देखकर सहम तो गई, लेकिन खुदावंद का पाक रूह उनको हिम्मत देता है। उनका ईमान ऐसा कामिल हुआ। और वहां पर लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो शहीदान रूम ये किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये बातें लिखी है। अब लड़कियों का ईमान अब पुख्ता हो गया। उन्होंने हौसले को बुलंद करने की गर्ज से एक दूसरे के हाथ को क्या कर लिया? क्या कर लिया? पकड़ लिया। मोहब्बत सीधे फाड़ गया। अब यहां पर मिसाल देखें, अगर मैं इसके ऊपर भी बोलना चाहूं तो बड़ा कायम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही पसंद नहीं करते, बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत, तो जो ठंडी पै जाएगी तो ऐसी किसी को कोल खिलाना पसंद नहीं करा, हाथ मिलाना पसंद नहीं करा। तो यहाँ पर देखें, उनके अंदर अगर मोहब्बत थी तो खुदा उनके दरमियान मौजूद है। हालेलुया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाकर इस बात को नहायत संजीदगी से एक शीरीन नगमा गाया। और वो नगमा कौन सा था, ये बात याद रखिएगा। और लिखा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही देकर अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। जो आखिर तक प्रकाश करेगा
वही निजात पाएगा। और फिर क्या हुआ, अब ये आवाज जो थी वो शीरी और गीत की थी, लेकिन दरिंदे वहां पर मौजूद थे, हैवान और चीते, शेर और भेड़िए मौजूद थे। उन्होंने उस पर हमला किया और एक एक लड़की को उसकी शीरी आवाज, उसके नगमे चीखों में बदल गए और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। अब यहां पर लिखा है मुकाशवा की किताब में, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ताज ऐਵੇਂ नहीं लग जाते। जो लोग कहते हैं ना, बड़े लोगों ने पादरियां और बड़े लोगों ने धोखा देना शुरू किया, ਉਹ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ आओ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ। क्या मूसा ने ऐसा किया था? मुकद्दस मूसा को खुदावन ने कहा कि जा इसराइल को वहां से निकाल कर इस पहाड़ पर आकर क्या कर मेरी। तो ये मूसा ने उठे क्या नकली का ठीक है, उठे किसी कमरा नहीं, उठे गली किसी घर नहीं, उठे सारा कुछ लैके तो उठे नाम दुआ करा दी। तो उठे किधर तो रहने क्या करते थे कि मसीहियों को लेकर उनके ऊपर तार कोल का तेल डालकर उनको स्टेडियम्स के ऊपर खड़ा कर देते और सारी रात वो चलते रहते और वो वहां पर तमाशगी भी करते रहते। ये वही रस्म जो है आज हम मस्जिदों की सूरत में देखते हैं, वही लोग वहां पर जो है जलते हुए हैं। लेकिन पौली काबिल ये फरमाते हैं, जो खुदावंद खुदा का बंदा फरमाता है, कहता है इतने साल मेरे खुदावंद ने मेरी हिफाजत की है, मेरे लिए दुख सहा है, आज मेरे सामने आग है, तो क्या खुदावंद खुदा मुझे ना बचाएगा? मैं हरगिज़ इनकार ना करूंगा। लोगों को नई चमड़े की जो खाल होती थी उनके ऊपर नई जो खुश्क नहीं हुई होती थी, अभी उतारी ही होती थी, उसमें उनको डालकर उनको सी दिया जाता और धूप में फेंक दिया जाता। अब जैसे जैसे जो थी वो खाल सुकड़ती, अंदर जो इंसान था उसकी हड्डियां चटकना शुरू हो जाती और उसकी चटकने के साथ साथ उसकी तमाम हड्डियां टूट जाती और उसके दिल में उसके तमाम अज़ा में जाकर पहुंच जाती और वो मर जाता। लेकिन उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि खुदा ये फरमाते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इनको चुप करवाओ, ये क्यों मसीह का नारा लगाते हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह जब गधे पर बैठकर आते हैं तो फकीह फरीसी ये कहते हैं, ऐ उस्ताद इनको खामोश करवा। क्या करवा? खामोश करवा। तो खुदावंद क्या कहते हैं, तुम खामोश करवाने की बात करते हो, अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर जलाना शुरू करते हो। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, जो जान देने तक वफादार रहेगा वो भी क्या होगा जी? निजात पाएगा। जरूर है कि आज हम इन बातों को देखें। मैंने पहले बताया था कि जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को देखना शुरू करें तो टाइम हमारे पास करीब होगा, लेकिन मैसेज अभी बाकी है। आने वाले वक्त में हम मकरूह चीज़ के बारे में सीखेंगे। हमने सिर्फ आज एक आयत को देखा है, दूसरी आयत जो है खुदावंद ने चाहा तो हम दूसरे मरतबा देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि हमें किसी भी बात में घबराना नहीं है, हम आखिर तक बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मसीह यीशु ने जब बर्दाश्त किया है उसने इतने दुख और तकलीफ और कर्ब के आलम में भी ये कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या
کرتے ہیں. ہمارا بانی بصیرت کا بانی جو ہے وہ یہ بات بیان کرتا ہے ہم اس کے پیروکار ہیں اور ضرور ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی صلیب اٹھائیں اور اس کے پیچھے. میرے عزیزو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ باتیں انکار کر کے گھبرا کر ڈر کر خداوند کے کلام کا انکار کر دوں گا تو بات یاد رکھیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو شخص اس طرح کام کرے گا جو شخص انکار کرے گا اس کا کتاب حیات میں سے نام کاٹ دیا جائے گا. خدا کا کلام اس بات کو آج بیان کرتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے. لکھا ہے کہ تم مت گھبرانا, اس وقت بات کرنے والے تم نہیں بلکہ کیا ہوگا جی میرے باپ کا روح ہوگا اور یہ نہ زور سے نہ قوت سے بلکہ اس کے روح سے ہو جائے گا. آپ کو اور مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ صدرک اور میثق عبدالنجوع کو جلتی ہوئی آگ میں سے نکال سکتا ہے تو خدا جو ہے وہ ہمیں کیوں نہ ان باتوں سے رہائی بخشے گا, ہمیں کیوں نہ ان باتوں سے بچائے گا. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہوگا, ہمیں اپنے گھروں میں دعائیں کرنی ہوگی, ہمیں زیادہ سے زیادہ مقدس کلام پر عمل کرنا ہوگا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. میرے عزیزو وقت نہایت نزدیک آن پہنچا ہے. یہ بات 2200 سال پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو آج 2200 سال ہو چکے ہیں تو میرے عزیزو سوچیں کہ کس قدر نزدیک ہوگا. یہ بات یاد رکھیں تب خاتمہ ہوگا جب تمام باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا. کوئی شخص بھی اس بات سے بے بہرا نہ رہے کہ خداوند کا کلام کونے کونے تک نہیں پہنچا. آج ٹی وی آج انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے. تو میرے عزیزو وقت نہایت نزدیک ہے. یہ کب شروع ہو جائے گا ہم نہیں جانتے, لیکن یہ ابھی ان باتوں کا پیش خیمہ ہے. اب ہمیں زیادہ محبت میں بڑھنے کی توفیق خدا دے اور زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, جمع ہوں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں. لکھا ہے, آخری بات کریں گے, لکھا ہے تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. تو اپنے خدا سے کیا کرنا, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری کیا رکھنا, محبت رکھنا. انبیاء اور شریعت اور تمام خداوند کے کلام مقدس کی تعلیم جو ہے انہی 2 حکموں پر منحصر ہے. میرے عزیزو آج وقت ہے اگر ہمارے اندر لڑائی جھگڑے بغض لعنتیں شراب نشہ اور تمام طرح کی انا پرستی تکبر اور خداوند کے کلام کے مطابق جو بھی کوئی مکروہ بات ہے اگر موجود ہے تو پھر یاد رکھیں آپ کا اور میرا اس میں نام نہیں ہوگا. کتاب حیات میں سے نام کاٹ دیا جائے گا. ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا ہے, پھر ہی ہم کیا پائیں گے, زندگی کا تاج پائیں گے اور پھر ہم خداوند کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھیں گے. خداوند اس مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین.